everyone, welcome back to the channel and today we are going to make the quilling part. So इस वीडियो में हम लोग quilling बनाएंगे and we are going to make the quilling of the blue angry bird. So ये जो आपका structure होगा 3D structure होगा and आप quilling को use करके आप 3D objects बना सकते हो and you can gift to anybody, whether for the birthdays, festivals or some special occasions. So you can make a lot of things, not just 1, 2 or 3. आप लोग कई सारे ऑब्जेक्ट से 3D स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो with the help of paper. Yes, only with the help of paper. So didn't you think it is too amazing? All that you need to know is how to use it and what to create. And मैंने कई दूसरे वीडियोस भी अपलोड किए हैं. I'll provide the link in the description box of those quilling videos and आप लोग एक बार जाके देख सकते हैं. So yes, if you like it then do like the video, subscribe. But before going that, I would like to tell you मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं and very easily आप कैसे create कर सकते हो. So the first thing which I used is the quilling sheets. So these are the quilling sheets which you can buy on Amazon or Flipkart, but I have bought this from Craftvilly. So this is the stationery, or you can say it's an art shop from where you can buy the things basically of quilling materials काफ़ी अच्छी वहाँ मिलती हैं. So these are the paper strips that I have bought and आपको कई सारे कलर्स की every colors आपको मिल जाएंगी वहाँ पे स्टोर में. I'll provide the link in the description box. Okay, second thing which I used was this. Okay, I used this. So basically this is the शार्प पेंसिल शेप स्ट्रक्चर. तो आप इसका यूज़ कर सकते हो इनिशियली पेपर को रोल्स कर. प्रेफर दैट यू यूज़ योर हैंड्स बिकॉज हैंड्स यूज़ करके इट विल बी मोर क्लियर, नीट एंड क्लीन. सो येस, अगेन दिस आई बॉट फ्रॉम Craftvilly and I'll provide the link in the description box. So the next thing which I used was this template, or you can say a plate like structure. So this has various kind of shapes of different size. You can see the small, larger one and different kind of sizes. So इसका यूज़ आप जो भी आपने 3D स्ट्रक्चर बनाया है पेपर को यूज़ करके आप उसे शेप दे सकते हो. दैट इज आपको अगर सर्कल का शेप देना है, so you can insert inside it and you can make it. And I'll show you how to do in the video. I'll provide the link of this one also in the description box. I'll provide the link of everything in the description box. And yes, this is what about the video will be. And yes, let's start without wasting much time. Okay, let's start. So ये पेपर्स कुछ क्विलिंग शीट्स है, जैसे क्विलिंग स्ट्रिप्स हैं जिसे मैं यूज़ करूँगी. एंड आप लोग 2-3 स्ट्रिप्स निकाल लो and then you start rolling out. So ये instrument है, with the help of this we'll roll. But मैं आप लोगों को prefer करूँगी that you can use your hands for rolling it better. So जब आप लोग अपने hands को यूज़ कर उसको roll करते हो तो काफ़ी neatly और एक way में clearly आपका जो circular part है वो form होगा, जैसे कि अभी मैंने कर रही हूँ. You need to just make a circle, continuously rolling the paper. अगर आपका पेपर फिनिश हो जाता है आप वहीं पे फेविकॉल यूज़ करो and you can stick another sheet of quilling strips and then you can again start with the rolling of the paper. So इस तरह से आप लोगों को रोल आउट करना है और ये आप लोग पे डिपेंड करता है दैट आप कितने बड़े साइज़ का सर्कल और स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप उससे रोल आउट करोगे. अगर आप छोटा सर्कल बनाना चाहते हो तो आप कम स्ट्रिप्स को यूज़ करके स्मॉल सर्कल बनाओ
और अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो तो आप ज़्यादा स्ट्रिप्स को यूज़ करके बिग सर्कल बनाओ। सो एज अ रिज़ल्ट जैसे मैंने कि यहाँ पे स्ट्रिप्स बनाया है, और जब एक बार आपका स्ट्रक्चर पूरा बन जाए, आप लोग एक एंड पे फेविकॉल स्टिक करो और जो लास्ट का पेपर स्ट्रिप है उसको पेस्ट कर दो, एंड इट्स वेरी सिंपल। इस तरह से आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो जाएगा। सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा जो आप लोग किसी भी पेपर से बना सकते हो। नाउ हमें एक हाफ सेमी सर्कल शेप चाहिए, तो यूजिंग दिस प्लेट आप लोग उसमें इंसर्ट करोगे और आप लोग अपने शेप के अकॉर्डिंगली उसको शेप दोगे। एज अ रिज़ल्ट आपको देख सकते हो यहाँ पे कि वो सर्कुलर शेप का काफ़ी अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन वे में वो हो गया है। अब मैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस हाफ सेमी सर्कल बना रही हूँ, जो कि मेरे बेस बनेगा फर्स्ट पार्ट के नीचे वाले पार्ट का। आपको सेम स्टेप्स फॉलो करनी है, और मैं आपको एक बात बता देती हूँ जिसको कि आप काफ़ी ध्यान देना है, दैट जब भी आप रोल आउट कर रहे हैं तो उसे अच्छी तरह से रोल करें, दैट इज़ टाइटली पकड़ के रोल करें, ताकि आपका स्ट्रिप्स जो है वो खुले ना बाद में। जब आप स्टिक कर लो उसको एंड में तो वो ओपन ना हो, इसलिए जब भी आप रोल करो उसे एकदम टाइटली रोल करो ताकि वो खुले ना। और ये स्पेशल केस में होता है जब आप कोई सर्कुलर ओपन क्लोज्ड पार्ट बनाना चाहते हो तो। अदरवाइज़ आप उस तरह से भी बना सकते हो जिसमें आप लोगों को कुछ पार्ट जो आपने सर्कल किए हैं, जो कवर अप किए हैं, उससे आपको ओपन अप करना होगा। सो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर सकते हो। जब आप स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कर लो तो मैंने जैसे आप लोगों को अभी पहले वाले पार्ट में प्रेजेंट किया कि आप लोग क्या करो, फेविकॉल यूज़ करो और उसको पीछे वाले पार्ट में उसे अप्लाई कर दो। इससे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रक्चर बना है, जैसे कि यहाँ पे हमारा हाफ सेमी सर्कल बना है, वो कुछ देर सूखने के बाद जब आप उसको प्रॉपर शेप दे दोगे, जैसे कि अभी मैं दे रही हूँ, इसके बाद जब आप उसमें फेविकॉल अप्लाई करते हो तो क्या होगा कि वो स्टिक्ड रहेगा, वो ओपन नहीं होगा बाद में। सो इस तरीके से वो पूरा स्टिक हो जाएगा। अब मैंने दोनों बॉल्स को जॉइन कर दिया है, एंड आप लोग देख सकते हो कितना काफ़ी स्मूथ क्लियर बॉल यहाँ पे बन चुका है हमारा सेकंड पार्ट एक बीक टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसको भी मैंने रोल आउट करके किया है। एंड sorry for the blur part. I hope it will be better up in the next video. So kindly please do not notice that. And जैसे मैंने हम लोगों ने रोल आउट किया था उसी तरह से आप लोग उसे भी रोल आउट कर सकते हो और बीक लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब मैं ऊपर वाले पार्ट बना रही हूँ ब्लू एंग्री बर्ड की, जिससे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ सेकंड पार्ट जैसे कि मैंने कहा इसमें टाइटली रोलिंग नहीं करनी है, आप लोगों अपने अकॉर्डिंगली साइज के उसे लूजली रोल आउट करना, बिकॉज उससे आपको ओपन करना है। जैसे देखो मैंने आप यहाँ पे ओपन अप किया एंड देन उससे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दे देना। यू कैन गिव इट द स्ट्रक्चर ओनली व्हेन यू विल ओपन अप द शीट। अगर आप टाइटली बना रहे हो उसे तो वो ओपन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपको ओपन करना है फर्दर आगे जाके तो आप उसे लूजली बनाओ, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है। सो ये सारी पार्ट्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम लोग आइज़ बनाएंगे। सो आप कोई भी वाइट कलर की शीट ले लो एंड सर्कुलर पार्ट कट आउट कर लो, एंड देन यूजिंग द ब्लैक पेन आप लोग उसे पॉइंट आउट कर लो। एंड देन मैं यहाँ पे रेड कलर की शीट यूज़ कर रही हूँ एंड मैं इसे भी सर्कुलर पार्ट में कट आउट कर रही हूँ। एक बार सब चीज़ प्रिपेयर हो जाए, सो द नेक्स्ट जॉब ऑफ योर इज़ टू अरेंजमेंट के लिए आपको जो स्ट्रक्चर बनाना है उसे काफ़ी प्रॉपरली ध्यान से आपको देखना होगा और उसी के थ्रू आप उसे अरेंज कर सकते हो। सो जैसा कि मैंने दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो बनाया था वो मैंने टॉप पे अरेंज किया है, एंड द बीक आई विल अरेंज इट ऑन द फ्रंट पार्ट। और उसी तरह से मैं आइज़ और रेड सर्कुलर पार्ट जो है वो मैं उसे पेस्ट कर दूँगी। जब ये पेस्ट हो जाए आप लोग इसे प्लीज़ फॉर 15 मिनट्स रहने दो, ये कम्प्लीटली पेस्ट आउट हो जाएगा और काफ़ी सॉलिड स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो जाएगा आपका।
इस पार्ट में मैं ग्रेटर देन सिंबल का स्ट्रक्चर और आप लोग कह सकते हो एरो शेप स्ट्रक्चर कट आउट कर रही हूँ, जिससे आप लोग जो आपका ब्लू एंग्री बर्ड है उसको पीछे पार्ट में, दैट इज़ बैकवर्ड पार्ट में आप उसे पेस्ट कर दो, और इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दैट एंड इट विल कंप्लीट योर होल स्ट्रक्चर. सो सिमिलरली आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड यू आर डन विथ इट. So yes, this was our video about, and here I met the blue angry bird. And आप लोग देख सकते हो how we made it. All the steps are given there in the video. This is the video about what we have done today. And yes, if you want to see more videos of the angry birds, of different kinds of angry birds, so yes, I'll be making more in the upcoming reel. आपको अच्छा लगा ये video, then give it a big thumbs up. Do subscribe the channel below, and yes, don't forget to comment below in the comment section what else you want. So until then, bye bye, see you.